Hello students, myself Dr. Uttara Chandrawat and I welcome you all in this e-lecture on the topic Manodarpan, which is an initiative by MHRD Government of India. This is psychosocial support for mental health and well-being of students during COVID outbreak and beyond. So in the previous lecture, I told you about this Manodarpan, that it comprises of a toll-free national helpline number 844-844-0632, and there is a website also, and a handbook on the 21st century life skills for all the students, college going, university going और school going. तो किसी को भी जब किसी भी तरह की साइको सोशल असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एडवाइजरी गाइडलाइंस को देख सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर को भी कॉल कर सकते हैं। तो हमने पाया था कि आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट दिस कोविड पेंडेमिक is affecting all the students. All the students, they are passing through stressful conditions, so this may affect in a negative way. So there are some tips and resources given here for psychosocial support which might be proved useful in finding out the best way to cope and recoup with this pandemic. Now, first, identify, label, and accept your feelings. It is important to know and observe yourself to understand how your thoughts and emotions are impacting you so that you know when to seek help. देखिए, यह जानना और ये एनालाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके विचार और भावनाएं आपको कैसे प्रभावित कर रही हैं, ताकि आप जान सकें कि मदद कब लेनी है। ठीक है, then we come to learn to communicate effectively. Most of our life we communicate with ourselves, and this is dependent on the tape that runs in your heads. If you do not make an effort to keep away from negative feelings, we will suffer badly. देखिए, आपको प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखना है। हम अपने जीवन में ज़्यादातर अपने स्वयं के साथ बातचीत करते हैं, जिसको हम आत्म-संवाद कहते हैं, और यह हमारे ब्रेन में चल रहे जो चलचित्र है इस पर निर्भर करता है। यदि हम नेगेटिव इंसिडेंट्स और विचारों से दूर रहने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हम अपने विचारों, मनोदशा और व्यवहार के माध्यम से दूसरों के लिए भी समान रूप से नेगेटिविटी को कम्युनिकेट करने के लिए हम we are compelled to communicate this kind of negativity in others also. ठीक है? Now next way is to connect and interact with your family. Share your concerns with anyone in your family and discuss your thoughts and concerns freely. It is important to take others' perspective too, to know if we are perceiving the things the way they are. अपने फैमिली के साथ बातचीत करिए, उनसे जुड़े रहिए, यह जानने के लिए कि क्या दूसरे लोग भी इन चीज़ों से आपकी ही तरह प्रभावित हो रहे हैं, आपकी ही तरह विचार कर रहे हैं। तो अपने परिवार में किसी के साथ भी अपनी जो आपकी चिंताएं हैं उनको शेयर करें और अपने विचारों और चिंताओं पे खुल के चर्चा करें। Now we have to ensure the balanced diet and nutritious food. Eat healthy balanced diet and keep yourself well hydrated. ठीक है? स्वस्थ संतुलित आहार खाएं और खुद को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। ईटिंग वेल इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ बॉडी एज वेल एज माइंड। डेफिशिएंसी में शो मूड एंड स्लीप चेंजेस ऑल्सो, देयरफॉर चूज हेल्दी एंड होममेड फूड। अच्छी तरह से भोजन करिए, जो कि शरीर और मन दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। पौष्टिक खाने की कमी से मूड और स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, इसलिए स्वस्थ और घर का बनाया हुआ खाना ही चुनें। Set an everyday me time. Work on strength-based skills for a living. Okay. Keep an eye on your areas of improvement, but do not let them override you.
हर दिन अपने लिए समय निर्धारित करें। ठीक है, लिविंग के लिए जो भी आपका स्ट्रेंथ बेस्ड स्किल्स हैं, यानी कि अपनी जो आपकी खूबियां हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं ना, उन स्किल्स पे काम करें। अपने सुधार के क्षेत्रों पे भी नज़र रखें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। नाउ what we have to do, avoid excessive exposure to media. Double check the news you read or hear. Avoid misleading news and rumors. देखिए, जो हम अननेसेसरी हम एक्सेसिव मीडिया से एक्सेसफुली एक्सपोज हो रहे हैं, टीवी के सामने सारे दिन न्यूज़ के सामने, न्यूज़ चैनल्स के सामने बैठे रहते हैं, तो आपके द्वारा पढ़ी हुई या सुनी जाने वाली खबरों को दोबारा जांच करें कि वो फेक न्यूज़ है या रियल है। ओके, मेंटेन अ रूटीन एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी। Stick to a scheduled routine for sleep, study, recreation, and nutrition. Eat healthy and avoid excessive use of caffeine, alcohol, or other substances. नींद के लिए, पढ़ाई के लिए, मनोरंजन और पोषण के लिए एक एक शेड्यूल रूटीन होना चाहिए आपका। तो ईट हेल्दी, और कैफीन, शराब और दूसरी तरह की जो भी ड्रग्स वगैरह हैं, उनके उपयोग से बचें। Infuse some variety into daily activities like read a book of your interest, अपने जो भी अपने आपके इंटरेस्ट की बुक है उसको पढ़ें। Stay connected with professors by email and keep up with classwork and assignments. अपने प्रोफेसर्स के द्वारा किसे ईमेल के द्वारा जुड़े रहें, और जो भी आपको असाइनमेंट दिया हुआ है उसमें आप जो है रेगुलर बने रहें। कॉलेजेस में सभी सेक्शंस में, सभी क्लासेस के सभी सेक्शंस में जो हैं लगातार ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। सारे प्रोफेसर्स जो हैं, आपके टीचर्स जो हैं, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ई लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको अटेंड करें। वो जो असाइनमेंट दे रहे हैं उनको परफॉर्म करें। मॉनिटर टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया। ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं और ये जो अननेसेसरी इंस्टाग्राम एंड वेरियस अदर फेसबुक्स एंड ऑल, तो इस पर बिताए हुए समय की निगरानी करें, उसको मॉनिटर करें। एंगेज इन और डेवलप अ हॉबी, हेल्दी हॉबी। कोई अच्छा सा अपना जो आपकी है उसको, उस पर आप फोकस्ड रहें। वर्क ऑन सोशल सपोर्ट, build rewarding connections with individuals and groups. Stay connected with your family members, it however difficult it may seem. You may face some difficulty while connecting with your groups and all, but you work on social support. Okay, follow safety tips. Learn about the facts and information from reliable sources and find out the tips to keep yourself and your family safe. In case you find the situation too overwhelming and out of control, talk to a counselor and seek help. ठीक है ना? तो सारे सुरक्षा सुझावों का पालन करें। रिलायबल सोर्सेज से आप जो सही फैक्ट्स हैं इस पेंडेमिक के बारे में, उसके बारे में जानें, और अपने और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जो है यू फाइंड आउट द टिप्स। और अगर आपको लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो आप फिर काउंसलर से बात करके उसकी मदद ले सकते हैं। आस्क फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प। कनेक्टिंग विद अ काउंसलर डजंट मीन दैट यू हैव अ मेंटल हेल्थ इशू। इस बात को आप भूलिए। देयर शुड बी नो मेंटल स्टिग्मा अबाउट दिस। यू आर ओनली ट्राइंग टू लिव एन इफेक्टिव लाइफ, एंड यस, एवरीवन नीड्स हेल्प इन वन एरिया और द अदर एट सम पॉइंट्स इन देयर लाइव्स। ठीक है, एक हम काउंसलर की हेल्प ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है हम मेंटली इल हैं ना। आप केवल एक प्रभावी जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी को देखिए, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन ऑफ अस, वी पास थ्रू सम बैड फेज इन आवर लाइफ एट वन और द अदर टाइम। कभी ना कभी किसी को जो है, हर एक को मतलब अपने जीवन में किसी समय में या क्षेत्र में एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। तो आप ऑफ कोर्स यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द काउंसलर्स। यूज़ सेल्फ हेल्प गाइड्स लाइक video or booklet
on mindfulness practice. टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन आप ले सकते हैं, ठीक है. वर्कशीट्स ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सरसाइज ना, आप जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बुक पढ़ सकते हैं. ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल, फॉर एग्जांपल द साइंस ऑफ वेल बीइंग ना, स्मॉल मॉड्यूल्स ऑन लाइफ स्किल्स पे छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो हैं वो उनकी आप सहायता ले सकते हैं. गाइडेड थेरेपी एक्सरसाइजेज वीडियो जो है, कई तरह के अभ्यास वीडियो हैं थेरेपेटिक, जिनमें आपको हेल्प दी जाती है थ्रू वीडियोस. क्रिएट सपोर्ट ग्रुप्स. Students can join any available peer support programs online to support and emphasize with other students who are going through stress, or if they are facing difficulty in coping due to this pandemic. ठीक है, तो एक तरह के सपोर्ट ग्रुप्स क्रिएट करें. सभी स्टूडेंट्स इस पेंडेमिक के कारण जो है तनाव और कठिनाई से गुजर रहे हैं. तो वो अपने ही समान दूसरे स्टूडेंट्स जो कि इसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, उनके समर्थन और सहयोग के लिए ऑनलाइन उपलब्ध किसी भी सहकर्मी सहायता कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. तो these are some advices to cope with the stressful conditions in this pandemic situation. Now I will continue the lecture on this topic, on the mental health of students. So please follow me in future also. Thank you. Goodbye.